Okay. Chapter 8 Quadrilaterals. The first question is, let us understand what is a proper quadrilateral. So it will be always an enclosed figure and having 4 non-collinear points. So students, यानी अगर मैं 4 non-collinear points को enclose कर देता हूँ, जैसे ये फिगर है, तो आई एम गोइंग टू enclose in this way. So formation of such a figure which has 4 vertex and 4 sides and it's a combination of 4 non-collinear points, means not on a straight line. तो ये enclosed figure को हम बोलेंगे quadrilateral, the proper definition. Now the quadri means 4 and lateral means sides, so it's already the word is saying quadri यानी 4 होता है, laterals means the sides. So the figure with the 4 sides, that's in a simple and plain way. So we are clear with the definition of quadrilaterals. Now let's go deeper. So the first and the very important property, if I recall you, what is the angle sum property of a triangle? So you will give me answer, sir, it's 180 degree. Okay, if it's 180 degree for a triangle, then for quadrilateral it is 360. So there will be a question how it's 360. Let us study how it's 360. So एक quadrilateral draw करेंगे. Now angle sum property of a quadrilateral, the sum of 4 angles of a quadrilateral is 360 degree. Okay, fine. So that's what I am drawing a diagonal. So proof, I'll just give a proof. आपके diagonal AC, okay? So in quadrilateral ABCD, join diagonal AC. Now after joining that, so quadrilateral ABCD consists of 2 triangles. So दो triangles कौन से है? Triangle ADC and the second one ABC. So ये दो triangles अगर, now if I talk about measure of angle triangle ABC, अगर ABC angle में let us name it, this is 1 angle 2 angle 3 नाम दिया, वैसे यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6. So if I talk in triangle ADC, ADC में आ जाओ, it's saying angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. Equation 1. Now in triangle ABC, ABC triangle में which are the 3 angles? Angle 4 plus angle 5 plus angle 6. This is also making 180 degree, the second part. Now adding equation 1 and 2. So equation 1 and 2 after getting added, so this 180, 180. So यहाँ पे क्या होगा? 180 plus 180 degree. And what about this part? Angle 1 plus angle 2 plus angle 3. फिर उसके बाद angle 4 plus angle 5 plus angle 6. So angle 1, 2, 3, 4, 5, 6. यानी it's forming simple angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360. So कितना easily proof हुआ कि ABCD the whole angles A plus B plus C plus D, ये चारों angles का measure कितना होगा? 360 degree. So 360 degree is easily proved. So you can other way you can understand, if there are 2 triangles, तो दो triangles के 180 plus 180 it's forming 360 in a straight simple way. So we are done with the first part. Please note it down, the angle sum property. Okay, so done with the first property, angle sum property of a quadrilateral, जो कि 360 डिग्री होता है. आगे बढ़ेंगे. Now types of quadrilaterals. बच्चों
Types of quadrilateral is the one of the major part which we will be utilizing in the exercise. So let's understand this whole figure. फर्स्ट फिगर ट्रेपेजियम. तो क्वाड्रिलेटरल का एक डेफिनेशन बनाया कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें भी वही है, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंक्लोज फिगर. तो ट्रेपेजियम में क्वाड्रिलेटरल जरूर होता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. फॉर एग्जांपल आई एम ड्राइंग अ शेप हियर दिस वे, और यहाँ पे ए बी सी एंड डी. सो इस क्वाड्रिलेटरल में ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी, दैट्स ऑल. सो ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है, जैसे ए बी और सी डी पैरेलल है, तो वी से इट इज अ प्रॉपर ट्रेपेजियम. सेकेंड फिगर, अ पैरेललोग्राम. व्हाट कैन यू सी अबाउट पैरेललोग्राम? सो अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ऐसा भी होगा, यस. सो अगर हमें ऐसा एक फिगर दिखता है, okay, so this A, B, C and D. Now how can we say this quadrilateral is a parallelogram? Two things we require. What is that two things? AB shall be parallel to DC and other thing क्या होना चाहिए? AD parallel to BC. बस. So always remember, किसी भी quadrilateral को अगर parallelogram बोलना है तो there should be pair of opposite sides parallel. यानी ऐसा नहीं हो सकता एक जोड़ी पैरेलल है दूसरी नहीं है, एक ही होगी तो उसे सीधा ट्रेपेजियम बोला जाएगा. When two lines are two opposite pair of two opposite sides are equal, then we say it is a parallelogram. Now rhombus. rhombus बनता है पैरेललोग्राम से. पैरेललोग्राम में एक छोटा सा चेंज क्या करना पड़ता है? सारे साइड्स इक्वल हो, यानी ये rhombus हम ड्रॉ करते हैं. Okay, A, B, C and D. Now I'll write very properly. Yeah? So ऊपर की प्रॉपर्टीज रिपीट होंगे. ऊपर की प्रॉपर्टीज रिपीट होना यानी ए बी और डी सी पैरेलल होना चाहिए एंड ए डी शुड बी पैरेलल टू बी सी. ये रिपीट होना चाहिए बिकॉज फाइनली रोम्बस इज पैरेललोग्राम. ओके, व्हेन ऑल द साइड्स आर इक्वल. अब उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? ए बी सेगमेंट शुड बी इक्वल टू बी सी सेगमेंट इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी. यानी बच्चों ये एक चीज और ये दूसरी चीज, ये दो चीज होगी तो रोम्बस होता है. यानी अगर आपको रोम्बस समझ में आना चाहिए कि ऑल देयर शुड बी अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड अदर थिंग ऑल द फोर सेगमेंट शुड बी कॉन्ग्रुएंट. नाउ कमिंग टू रेक्टेंगल. बचपन से बढ़ रहे हो, बट क्या बचपन में और अभी में फर्क है? यस, देयर इज अ डिफरेंस. अब पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनता है? पैरेललोग्राम रेक्टेंगल विल बिकम, this is a question in the exercise also, they have tried to prove that the given parallelogram is a rectangle, they have asked it. तो उसके लिए हमें क्या होना पता होना चाहिए कि एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होगा? जब उसके अंदर यही पैरेललोग्राम है, अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और इसमें 90 डिग्री होना चाहिए, यानी एक एंगल 90. मतलब इसमें वापस फर्स्ट क्राइटेरिया तो फुलफिल होनी चाहिए, इट शुड बी हैविंग ए बी पैरेलल टू डी सी एंड सेकेंड थिंग व्हाट वी हैव टू से द सेकेंड थिंग एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, वो पैरेललोग्राम. और दूसरा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? एंगल ए डी सी. राइट नाउ आई विल जस्ट से वन एंगल दैट इज 90 डिग्री. एनी ऑफ द, ऐसे जरूरी नहीं कि ए ही होना चाहिए, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. तो ये दो क्राइटेरिया से वो बन जाता है रेक्टेंगल. स्क्वायर कब बनेगा? अगर रेक्टेंगल के अपोजिट, सिंपल है, एक रेक्टेंगल आप ड्रॉ करते हो, रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल, लेकिन रेक्टेंगल के सारे साइड्स इक्वल है तो उसे बोल देंगे हम स्क्वायर. सो ए बी सी एंड डी. अब इस फिगर में सारे सेगमेंट्स इक्वल है, यानी 1 2 3 4. तो अब हम क्या बोलेंगे? सो इट शुड बी अ रेक्टेंगल. यानी ये तीनों रूल्स तो एज यूजुअल वापस रिपीट होंगे. सो यू विल से फर्स्ट रूल ए बी और पैरेलल टू डी सी होगा, ए डी और बी सी भी पैरेलल होगा. फिर उसके बाद ऑल एंगल्स 90 डिग्री मीन्स एंगल ए डी सी is equal to angle, you can say in short, so angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90 degree
and third thing, you should be having AB segment equal to BC is equal to CD is equal to AD. Okay, fine. So this is the whole chart. जहाँ पे I have discussed the 5. The kite is the third of sixth one, which is not covered here. Kite एक simple है, बाद में हम cover कर दे. There is no space on the screen now. ओके सो फिर से रिवाइज करके देता हूँ. ट्रेपेजियम की पहली बात करें तो कोई भी क्वाड्रिलैटरल जहाँ पे एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल. ठीक है. दूसरा चीज, अ क्वाड्रिलैटरल इन विच बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. दोनों सर अपोजिट पेयर लाइंस, सो दोनों अपोजिट पेयर ऑफ लाइंस इक्वल है. तो फिर क्या, जैसे ये ए बी और सी डी पैरेलल है, ए डी और बी सी पैरेलल है, तो एकदम सिंपल है. द वर्ड इट्स सेइंग पैरेललोग्राम. फिर रोम्बस कब होगा, जब एक पैरेललोग्राम के सारे साइड्स इक्वल है. मतलब आपको पैरेललोग्राम दिया है, उसके सारे साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो वो हो गया रोम्बस. रेक्टेंगल कब बनेगा, पैरेललोग्राम विथ एंगल 90 डिग्री. सो 90 डिग्री एंगल अगर पैरेललोग्राम में मिल जाता है तो इट कैन बी सेड एज रेक्टेंगल. एंड फाइनली अ स्क्वायर. व्हाट इज अ स्क्वायर, सो इफ यू हैव अ रेक्टेंगल एंड इन दैट यू हैव, सो अगर रेक्टेंगल के अंदर कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल है, यानी बाजू वाले साइड्स इक्वल है, जैसे एडी और सीडी इक्वल निकल गए, तो वी कैन से इट बिकम्स अ स्क्वायर. Okay, so this is the whole and soul of the types of quadrilaterals in simple and clean form. So please note it down in your books. Everyone make a understanding one more thing. So हर एक स्क्वायर को, every square is rectangle and a rhombus. मीन्स अगर आपने स्क्वायर को देखा तो स्क्वायर रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, रोम्बस की भी करता है. यानी आप स्क्वायर अगर देखोगे तो उससे रोम्बस का भी नाम दे सकते हो, रेक्टेंगल का भी नाम दे सकते हो. ओके, बट ऑन द अदर वे एवरी रोम्बस एंड रेक्टेंगल आर नॉट अ स्क्वायर. ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है. सो यू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल and rhombus, but every rhombus and rectangle is not a square. So please make yourself this clear, and you can note it down as a note that every square is a rectangle or rhombus, but every rhombus and rectangle is not a square. That's clear. चलो बड़े आगे. Okay, now we will begin with the parallelogram. Let us study the properties of parallelogram. So overall if I tell you there are 8 properties, इस 8 properties को हम one by one समझ के लेंगे. सबसे पहले property, a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. Now let us say what is the thing we know. Given thing, quadrilateral ABCD is a parallelogram. Okay, this is the first thing. Next thing is AC is a diagonal. Okay, to prove, triangle ABC is congruent to triangle ACD. ABC ट्राइंगल और ACD ट्राइंगल ये दो कॉन्ग्रुएंट है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में. प्रूफ. ओके, नाउ इन द प्रूफ थिंग व्हाट यू विल से, फर्स्ट थिंग आई विल बिगिन विथ दिस. ये वन एंगल और ये टू एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. व्हाई इज इट सो, बिकॉज AD एंड BC आर पैरेलल, क्योंकि फिगर ने बताया कि इट्स अ पैरेललोग्राम. तो ये जो लाइन है, तो पहली चीज ये लिखूंगा मैं, AD सेगमेंट इज पैरेलल टू BC ऑन ट्रांसवर्सल AC ट्रांसवर्सल पे ध्यान दो. AC ट्रांसवर्सल पे एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, यानी 1 इज इक्वल टू 2 अल्टरनेट एंगल्स.
सो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है। फिर उसके बाद AD और BC तो पैरेलल निकला, वैसे ही आप यू कैन ऑल्सो गो फॉर DC segment is parallel to BC segment, यानी DC is parallel to AB. And now again my same transversal AC पे, अब मेरे पास ये जो एंगल 3A और 4 है ये इक्वल होंगे, यानी आई विल से एंगल DCA is equal to angle BAC, and this is my statement number 1. This is again alternate angles are equal. Okay, and reason number, so statement number 2. Now 1 और 2 मिल गया. Now if I come to triangle ABC, दो ट्राइंगल्स में जाता हूँ, कौन सा, ACD एंड ट्राइंगल ABC. ओके, इन दो ट्राइंगल्स में आपको यहाँ पे सी गो इन ACD में जो एंगल 1 है, यानी दिस इज माई एंगल DAC इक्वल टू एंगल ACB फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1. Then again we have angle DCA equal to angle BAC, and from statement number 2. Second statement is also again formed. फिर AC और AC क्या है, कॉमन साइड. ये दो कॉमन साइड्स हैं. ओके, तो अब आप देख सकते हो एक एंगल, एक साइड और एक एंगल, यानी ये ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हुए. बाय ASA टेस्ट या फिर रूल. That's it. So parallelogram has been divided into two congruent triangles here. So it's proved, hence proved. Fine. So the whole proof is quite easy and straightforward. Please note it down in your books. So we have done the first property. Again, let's say what is the first property? A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. Fine. What is the second property? In a parallelogram, opposite sides are equal. अब ये बहुत easy proof है. Proof. What you have to prove? कि opposite sides are equal, यानी आपको DC और AB equal दिखाना है and AD is equal to BC. So students, if I tell you triangle ABC will be, what is given, quadrilateral ABCD is a parallelogram. अब एक पैरेललोग्राम के अंदर हमें क्या मिलेगी, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिलते हैं. ये अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी, ABC जो है वो किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, ACD को. अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग CPCT प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. CPCT से क्या पता चलेगा, जो AB सेगमेंट है वो किसको इक्वल होगा, सो AB हमारा CD को कॉन्ग्रुएंट होगा. एंड ऑल्सो देयर विल बी अदर थिंग, आपका AB is congruent to CD and also AD is congruent to BC, and this both will have a reason corresponding pairs of congruent triangles. So therefore opposite sides of parallelogram are equal. So opposite sides of parallelogram are now equal. Done. Second property, that is, please note it down.
Okay, the second property what we will revise again, first is in a parallelogram the diagonal divides the parallelogram into two congruent triangles. फिर सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इन अ पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स आर इक्वल. दो प्रॉपर्टी अभी कंप्लीट हो चुकी है. थर्ड प्रॉपर्टी, if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram. अब मुझे बताओ, हर एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिया गया है, उसके अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल दिए, तो क्या ये पैरेललोग्राम बनता है, होगा या नहीं होगा. सो इट्स आस्किंग, सो लेट अस से आपको गिवन ये दिया है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में they have provided AB is equal to CD and AD is equal to BC. ये चीज दी है given. What you have to prove, quadrilateral ABCD is a parallelogram. Okay, so यहाँ पे ABCD को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, जबकि दिया क्या है, CD इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस. ओके, अब पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमने डेफिनेशन पे आ जाओ चार्ट में. व्हाट इज अ पैरेललोग्राम? इफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर, बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. यानी यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको क्या प्रूफ करना है, एक छोटे से रेड कलर में लिख के रखता हूँ यहाँ पे. सो इनडायरेक्टली यू हैव टू प्रूव दैट AD इज पैरेलल टू BC. ये एक चीज मिलनी चाहिए आपको, और दूसरी CD इज पैरेलल टू AB. इतने लाइन स्टेटमेंट्स हमें प्रूफ करने हैं. सो प्रूफ पार्ट पे आते हैं. अब प्रूफ पार्ट पे आ जाओ सब लोग. नाउ तो मुझे AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC बहुत क्विकली इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ACD, इन दो ट्राइंगल्स में कैन यू प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट? यस, वेरी वेल. कैसे? AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD एंड AC इज इक्वल टू AC. So my triangle ABC has become congruent to triangle ACD by SSS rule. समझना कुछ नहीं था, अंडरस्टैंड इट. ये पेयर ऑफ टू साइड्स और एक कॉमन साइड, इससे SSS रूल से ट्राइंगल्स बिकेम कॉन्ग्रुएंट. अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो देखना, नाउ ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, तो कैन आई से ये जो एंगल है हमारा, दिस विल बी इक्वल टू दिस. सो CPCD से मैं ये लिख सकता हूँ कि DAC विल बी इक्वल टू एंगल ACB, देयरफॉर एंड आल्सो this will be equal to this. So angle DCA is equal to angle CAB and this both has a result corresponding pairs of congruent triangles. अब मुझे बताओ, alternate angles congruent आए तो lines parallel होंगे कि नहीं होंगे? Yes. So now from statement number, so let us name it as 1 and 2. So from स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो ये एंगल है और ये एंगल है, ये क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल, जो कि कॉन्ग्रुएंट निकले. अगर अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो AD सेगमेंट और BC पैरेलल है. सो फ्रॉम 1 वी कैन से AC इज पैरेलल टू BC एंड फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 2 सेकेंड स्टेटमेंट में DC और CAB, DCA और CAB, अब ये वाला और ये वाले एंगल्स, तो इससे क्या प्रूफ होता है कि AB और CD भी पैरेलल है. सो विल राइट AB इज पैरेलल टू CD. यानी व्हाट आई हैव डन स्टूडेंट्स, मैंने सिर्फ अल्टरनेट पेयर्स निकाल दिए. सो व्हाट विल से अल्टरनेट एंगल टेस्ट. So you have studied this in pair of lines and angles, that alternate angles congruent रहेंगे तो segments are parallel. So this is the proof from 1 and 2 we get this. So therefore the final statement, quadrilateral ABCD is a parallelogram. Why it's a parallelogram? Because the opposite pairs of the quadrilateral ABCD are parallel. अगर दोनों भी, जैसे ये और ये दोनों प्रूफ हो चुके हैं, इसका मतलब ये फिगर क्या हो गया, ABCD एक पैरेललोग्राम बन चुका है. ओके, प्लीज नोट इट डाउन. दिस इज द
third property of the properties of parallelogram. स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो डू लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मेनी मोर अपडेट्स.